हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, कैन यू प्लीज कंफर्म मी दैट एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir, you're audible. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. So great. Welcome all of you for this wonderful session that is all about campus placements. I'm sure that after the first year of your college, definitely this question starts coming in your mind that what kind of companies will be participating and are we really ready for it? So this today's session is entirely about that. And in next 60 minutes, right, we will be talking each and every aspect about it. I would request all of you that if you can keep a notebook with you, so that you can note down a lot of important points that is very much required. एंड आई एम श्योर कि ये जो 60 मिनट्स रहेंगे इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसा नॉलेज मिलेगा जो जनरली डिस्कस नहीं होता है. We have handled in the past for last 5 years, and in last 5 years we have almost spoken with more than 500 MBA finance students. More than 200 students have been placed through us, and we have seen the journey of lot of students जो लोग कोर फाइनेंस लेते हैं, और उस पूरी जर्नी को हमने बहुत क्लोजली एनालाइज किया है, और उसमें जो गलतियां उन्होंने करी और जो राइट स्टेप्स लिए हैं वो सारी राइट स्टेप्स हम लोग ने कवर किया इस सेशन के अंदर. सो डेफिनेटली आप लोग को कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, ओके, सो अनम्यूट योर माइक एंड डू आस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डू नॉट फील हेजिटेंट इन आस्किंग एनी क्वेश्चन. Right. So let's start with this session. Yeah, because there are a lot of things जो आज हमको डिस्कस करना है, और इस पूरा ये जो पूरा टॉपिक है कैंपस प्रिपरेशंस, राइट, ये ऑफ कोर्स आप समझते हो काफी बड़ा टॉपिक है, और 60 मिनट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर इट. लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितने एस्पेक्ट्स में कवर कर सकें, राइट, उतने एस्पेक्ट्स हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. All right, so today's theme is about job placements. Yes, we'll be mostly talking about job placements, and obviously there are questions which you may be facing regarding your internships, and there may be some other questions as well regarding your career. We'll be taking up those questions as well. Before I start, yes, this is our institute, CampPrep. CampPrep is basically abbreviated version of campus preparations. We purely focus on campus preparations, and we started in 2017. Close to 3,000 plus students have been placed in this campus preparations program. We help chartered accountants, we help MBA finance students, and we do help MBA marketing students. Highest package that has gone domestically is 24 lakhs and international 45 lakhs. If I'll talk about MBA students, the highest package gone is 15.25 lakhs. You might have heard about a company called as RCCM. Yes, one of our students got placed in RCCM, and he had got this package. We have a very large alumni network. उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे. 100% placement has been done so far. We focus mostly on special skills and company specific, right? So this is about us, and this is these are the companies where in the past the students have got their placements. राइट, ये वो सभी कंपनीज है जो आप जनरली कॉलेज में भी सुनते होंगे कि ये कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं. कंपनीज लाइक आरसीसीएम, कंपनीज लाइक डेलॉयट, एसजी एनालिटिक्स, एसएनपी ग्लोबल, बंधन बैंक, पूर्णा, मॉर्निंग स्टार, अलायंट ग्रुप, विप्रो, ब्लैकस्टोन, केपीएमजी, डेसिमल पॉइंट, ये वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज ने पिछले 2 या 3 सालों में कैंपस में पार्टिसिपेट करा था, और इन सभी कंपनीज में कोई ना कोई हमारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं. So we have seen the complete process about these companies, और उन सारी processes को we have tried to capture in our course curriculum. This is definitely some of the results that we have seen, successful results. Mostly all the companies. This is one of the student who got placement in RCCM. RCCM, as you all know, that this is the most sorted company because obviously because of the package that
ये कंपनी जो ऑफर करती है। And this is about me. Yes, my name is Gunjan Srimal, and by profession, I'm a chartered accountant, and I'm Indore alumni. I worked for almost four companies. ये जो companies के logos आप देख रहे हो, इन companies में मैंने work किया था from 2007 till 2017. Almost 10 years I worked in these companies. Mostly I spent time with Apollo Hospitals, Idea Cellular, Bank of America, Axiata, and Tikona Digital Network. My journey was mostly into finance vertical, and इस पूरे journey में I've seen interacted with a lot of freshers. और जब से हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स वी आर अगेन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ फ्रेशर्स बट दिस टाइम फ्रॉम द अदर एंगल, राइट? एक बार हम आई वर्कड इन इंडस्ट्री, और उसी इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, राइट, दैट आई एम ट्राइंग दैट शुड बी शेयर्ड विद फ्रेशर्स, right? So this is what we are doing. This is the theme for today's webinar, right? Moving from college life to corporate life. There are a lot of questions that I believe you must be having in your mind. और ये क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, हम जो क्लासिफाई करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? बैंक्स में जाएं या फिर हम लोग कॉर्पोरेट्स में ज्वाइन करें, या फिर हम लोग इक्विटी रिसर्च के रोल्स लें, या फिर कोर फाइनेंस। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है हर एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट के माइंड में कि कोर फाइनेंस का जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप लोगों ने फाइनेंस इसीलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोर फाइनेंस में जाने। सो कोर फाइनेंस में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या वो आप उन क्राइटेरिया में फिट होते हो या नहीं होते हो, कितनी कंपनीज आती हैं, ये पॉइंट हम लोग आज कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू सेल्फ क्लैरिटी। कई बार स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ खुद ही क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हर साल मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर हमको डेलॉइट में टैक्सेशन की प्रोफाइल है और हमें टैक्सेशन में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं सेल्फ क्लैरिटी से रिलेटेड कि क्या हम जो कंपनीज लेने वाले हैं उन कंपनीज की प्रोफाइल सफिशिएंट है क्या, मतलब हमारी लाइकिंग के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू कैंपस। कैंपस की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, राइट? So we have classified all these questions into three parts. The first part is understanding the industry and job market, right? Job market कैसे में क्या चल रहा है। सेकंड इज सेल्फ क्लैरिटी एंड थर्ड वन इज कैंपस प्रिपरेशंस, राइट? ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हम देखें तो इनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहली बात करते हैं, दैट इज इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट, राइट? सो इंडस्ट्री की अगर हम अगर जॉब मार्केट की बात करते हैं एमबीए फाइनेंस के लिए, तो बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक कंसल्टिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल सर्विसेज, hedge fund accounting, accounting and audit firms, corporate finance, IT and tech work and sales, right? तो एक एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट इतनी कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो जनरली आपके कॉलेज में पार्टिसिपेट करती हैं? तो यहाँ पर एक बार आप मुझे अगर अपने कॉलेज का बता दें कि आप कौन से कॉलेज से हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू गाइड यू अकॉर्डिंगली, राइट? इफ यू कैन जस्ट राइट इफ यू आर फ्रॉम Prestige, you can write Prestige. If you're from IMS, if you're from IIPS, whichever college you are from, you can simply write in the chat box. So we can guide you accordingly. Yes, everyone, if you can write, please. Just write in the chat box. So, broadly speaking,
बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ हेजिटेशन भी लग रहा है हेजिटेट कर रहे हैं, तो ओके, नो प्रॉब्लम। ब्रॉडली स्पीकिंग, वी इफ आई टेल यू दैट जो कंपनीज कॉलेज में पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें से मैक्सिमम जो कंपनीज हर बार रिपीट होती हैं, राइट, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें सबसे पहली कंपनी होती है आरसीसीएम। डी शॉ ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये वो कंपनी है जो हर बार करीब करीब पार्टिसिपेट करती है, ओके, और आप लोगों को इस कंपनी के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन कर रही है। 15.2 lakhs का इसका पैकेज होता है, और दिस इज द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल दी स्ट्रीम्स, राइट। कोई एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट है, एमबीए मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है, उन सभी में अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज लेकर आता है, ठीक है। सो दिस इज वन कंपनी। सेकंड, यू हैव हर्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक, ऑब्वियसली आपने सुना ही है उसके बारे में। डेलॉइट यूएसआई, ये भी वो कंपनी है जो हर बार आती है, राइट। इतने सालों से हम देख रहे हैं, और एक भी ऐसा साल नहीं गया जब डेलॉइट यूएसआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। एवरी ईयर दे आर पार्टिसिपेटिंग, एंड आई थिंक ये वो कंपनी है जिसके बारे में आप लोगों को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। रीजन फॉर दिस इज बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कंपनी दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग, और a good number of students they do hire every year. Almost अगर हम इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर से every time I can see 40-50 students gets hired by this company, right? तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। इसके बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए। अलायंड ग्रुप इज वन ऑफ द अनदर ग्रुप, विप्रो लिमिटेड, ब्लैकस्टोन, बजाज हाउसिंग, रीनस लॉजिस्टिक्स, एचएफएफसी, अमूल। तो ये हम बात कर रहे हैं 23 की, राइट, यानी कि कौन सी बैच, 21-23 की। 22-24 की अगर हम बात करते हैं, तो द प्लेसमेंट सिनेरियो वाज नॉट गुड एट ऑल। मुश्किल से कोर फाइनेंस की 2 या 3 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। सो उसमें से कौन कौन सी कंपनी थी? डेलॉयट यूएसआई, इन फ्यू कॉलेजेस एसएनपी ग्लोबल आल्सो पार्टिसिपेटेड, एंड देयर इज वन मोर कंपनी, राइट, दैट हैज आरसीसीएम। ऑब्वियसली हर साल ही पार्टिसिपेट करती है, लेकिन बिकॉज आरसीसीएम सिलेक्ट्स वेरी फ्यू पीपल, राइट, और कभी 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, कभी 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है, राइट, वो बहुत कम है। सो फ्रॉम दैट एंगल आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप लोगों को इस पूरे सिनेरियो को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि जो कोर फाइनेंस की कंपनीज है वो कम आती है, ठीक है। अब इस बार का स्टेटस क्या होने वाला है, राइट? इस बार क्या नंबर ऑफ कंपनीज उतनी ही आएंगी या जितनी पहले आई थी? तो ये कोई भी नहीं कह सकता है। सिनेरियो ऑल्दो साइक्लिकल होता है। अगर आप 2 साल पहले की बात करें, जब कोविड का बैच चल रहा था, उस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यस, ये वाली जो कंपनीज हैं ये कोविड के टाइम पे इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और भी कम ऑलमोस्ट 10 to 12 कंपनीज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कोर फाइनेंस प्रोफाइल। सो कहने की बात बहुत सिंपल है, कि आप इस जॉब मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, और मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस इतनी बात एक क्लियर हो जानी चाहिए कि कोर फाइनेंस की लिमिटेड कंपनीज आने वाली है। हर कॉलेज में से ज्यादा 15% to 20% पीपल गेट इन टू कोर फाइनेंस जॉब। अगर आपके कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स है, तो जनरली आप देखोगे जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं, यस, दे ओनली विल गेट द कोर फाइनेंस जॉब। रिमेनिंग 300 जनरली गेट इनटू सेल्स, राइट, जो सेल्स से रिलेटेड जॉब है उसमें जाते हैं। या फिर अगर फाइनेंस में भी जाते हैं तो कोर फाइनेंस नहीं होता है, वो स्लाइटली टेक्नो फाइनेंस हो जाता है, या फिर मोर ऑफ अकाउंटिंग हो जाती है, या फिर अलाइड फाइनेंस हो जाता है। जो कोर फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो टॉप 15-20% स्टूडेंट्स है, दे गेट, राइट। सो ये बात सभी को क्लियर है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। जो कंपनीज आती हैं, राइट, और अगर आप पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस में जनरली अगेन यही बात है, 7 lakhs प्लस की बहुत ही लिमिटेड कंपनीज, कम कंपनीज आती हैं। 7 lakhs के ऊपर की कंपनीज आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले चार्ट में, बहुत ही कम कंपनीज आई थी, ठीक है। सो आई डू नॉट वांट कि आप लोग आपको पूरा सिनेरियो क्लियर है, राइट? पिछले 3 साल का, 3 साल में किस किस तरह से कंपनीज आई थी। ऑब्वियसली लास्ट ईयर वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट मेरा ये मानना है कि ये वाला जो साल है, राइट, अगेन थिंग्स आर इम्प्रूविंग अपॉन। और एक साल अगर हायरिंग नहीं होती तो दूसरे साल डेफिनेटली उसका फायदा जरूर मिलता है।
क्योंकि वो जो पर्टिकुलर साल है उसमें जितनी ओपनिंग्स क्रिएट हो रही है वो सारी ओपनिंग्स इस पर्टिकुलर बैच से फिल होनी चाहिए। तो मेरा मानना पर्सनली ये है कि इस साल डेफिनेटली पिछले साल से काफी बेटर सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपकी तरफ से कि फेडरल बैंक आती है। हाँ, डेफिनेटली फेडरल बैंक आती है, और फेडरल बैंक जनरली सेल्स के लिए आती है। ठीक है। ऑल्दो पैकेज उसका काफी अच्छा रहता है, लेकिन इट जनरली कम्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रूल्स। ऑल राइट। अब हम आगे चलते हैं। दैट फ्यू ऑफ द कंपनीज, इसके जो राउंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, डी शॉ, यस, RCCM। ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा, कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं होंगे स्टूडेंट जिन्होंने ये नहीं सुना होगा RCCM, क्योंकि जब हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती है। तो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर कौन सी करती है? डी शॉ, राइट, RCCM। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स ये बात नहीं करते हैं कि वो रोल के ऑफर करती है। ठीक है। मेरा आप लोगों को सबको ये सजेशन है कि रोल के बारे में भी पैरेलली जानते रहिए कि वो रोल के ऑफर करती है। तो बेसिकली दे ऑफर रोल इन हेज फंड, राइट, इट्स अ हेज फंड। उसका बैक ऑफिस आपको मिलता है, और इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऐसे देखा जाए तो पिछले सालों में उसमें थोड़ा बदला है। अभी का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद 3 राउंड होते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज के, राइट। सो वन टेस्ट इज ऑर्गेनाइज एंड देर आर 3 राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज। ठीक है, ये होता है। सुनने में बड़ा इजी है, बट जब टेस्ट की हम बात करते हैं तो टेस्ट में आप मान के चलो 90% स्टूडेंट्स गेट्स रिजेक्टेड इन द टेस्ट इटसेल्फ। यस, ये मैं आपको पिछले सालों के नंबर्स के बेसिस पे ही बता रहा हूँ। 90% स्टूडेंट्स गेट्स रिजेक्टेड इन दी रिटर्न टेस्ट। ठीक है। सो ये जो टेस्ट बहुत टफ टेस्ट होता है, और जनरली 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। समटाइम्स दे गिव 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, समटाइम्स दे गिव 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, एंड 25 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स, राइट। इस तरह का एक पैटर्न होता है। उसमें क्या क्या चीजें कवर करते हैं हम आगे की स्लाइड्स में उसको कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपको डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स, राइट। अभी शायद आप लोगों ने आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में ये टॉपिक आएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव्स। इसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स ये कवर होते हैं। तो इसके ऊपर आपका एक बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सेकंड कंपनी की अगर हम बात करें, जो इस चार्ट में दिख रही है, दैट इज डेलॉयट यूएसआई। ठीक है। डेलॉयट यूएसआई अगेन एक बिग फोर फर्म है, आपने सुना होगा डेलॉयट। दुनिया की 4 जो बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स हैं, PwC, KPMG, EY और डेलॉयट, राइट। तो ये 4 में से एक डेलॉयट है। बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। मोर देन 150 कंट्रीज में देयर ऑफिसेज आर देयर। ये जो प्रोफाइल है, इट इज बेसिकली डेलॉयट यूएसआई, राइट। डेलॉयट यूएसआई मींस डेलॉयट यूएस इंडिया। यूएस इंडिया का मतलब है हम इंडिया से यूएस के ऑफिस को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इट इज सपोर्टिंग द यूएस ऑफिस। और आपकी सिटिंग कहाँ होती है? यहाँ पर हैदराबाद में। हैदराबाद में अभी जो पास्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों की पिछली बैच से करीब 12 स्टूडेंट्स गॉट ऑफर फ्रॉम डेलॉयट यूएसआई, राइट। सो वो 12 लोगों को, most of them, they have got the posting in Hyderabad. So हैदराबाद में बैठ के they will be supporting the US office. अब उनका काम क्या होता है? उनका काम बेसिकली होता है डायरेक्ट टैक्सेशन का, राइट। डायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ा ही है, मोस्टली इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्क होता है इसमें। इसका जो राउंड होता है, इसमें तो ये थोड़ा लंबा बोल सकते हो। देयर इज अ लेंदी प्रोसेस इन दैट, राइट। और लेंदी प्रोसेस के अंदर क्या है इसमें? द फर्स्ट थिंग इज वर्सन टेस्ट। यस, वर्सन टेस्ट किसी ने सुना है? व्हाट इज वर्सन टेस्ट? यस, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों को बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी, या हो सकता है कि अभी आप ये सब बातें अभी तक आपने नहीं सुनी हो, तो नई बातें भी हो सकती हैं। तो मुझे अगर थोड़ा थोड़ा सा आप लोग फीडबैक देते जाओगे कि एम आई गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। यस, अनुज, कैन यू टेल मी दैट वट एवर आई एम सेइंग, इज इट मेकिंग सेंस, और मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ अलग ही चल रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है? आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो?
Yes, can you someone please give me a quick feedback? बोल दो कुछ कुछ बोल दो कि हाँ यस इट इज गोइंग फाइन और नॉट गोइंग फाइन. ऑल राइट. ऑल राइट. ठीक है, मैं अज्यूम ही कर लेता हूँ दैट इट इज गोइंग फाइन. ठीक है, अभी आगे हम लोग क्विज करेंगे और क्विज में प्राइजेस हैं. एटलीस्ट आई बिलीव कि उस टाइम तो आप में से कोई कुछ बोलेगा. ठीक है. चलिए. एनीवेज, so Deloitte USI is basically is a very good company. And Versant Test, right? Versant Test is basically okay. Thank you very much, Anuj. Thanks for speaking. Okay. Versant Test is about checking your English. Yes, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है उसके ऊपर ये एक टेस्ट होता है. ठीक है, आपने लिखा था लिसनिंग एंड राइटिंग. It's not about writing, it's all about listening and speaking, more about speaking. Yes. So ये राउंड अगर आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका डेलोइट में सिलेक्शन 70% हो गए. ठीक है. तो इस बात को अब आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कि इन दोनों बातों को नोट कर लो आप. दैट आरसीसीएम के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो डेरिवेटिव्स के ऊपर अच्छा होल्ड बनाना है. और अगर आपको डेलोइट में क्लियर करना है, डेलोइट में अगर आपको सिलेक्ट होना है, तो डेलोइट के लिए आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग अबाउट वर्सेंट टेस्ट. राइट, तो वर्सेंट टेस्ट के बारे में पढ़िए. मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करूंगा वर्सेंट टेस्ट से रिलेटेड. आप लोग वर्सन टेस्ट की तैयारी आज से स्टार्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कैन नॉट बी इम्प्रूव विद इन अ डे. राइट, एक दिन में वो इम्प्रूव नहीं होती है. और अगर आप अपने किसी भी सीनियर से बात करेंगे, राइट, आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे जिन्होंने डेलॉइट में डेलॉइट क्लियर किया होगा. उनसे अगर आप बात करोगे वो आपको बता देंगे कि 70% आपका रास्ता क्लियर हो जाता है अगर आप वर्सेंट क्लियर कर लेते हो. ठीक है, तो वर्सेंट के बारे में आगे बात करेंगे. आफ्टर वर्सन टेस्ट एक्सेल टेस्ट हैपेंस. राइट, एक एक्सेल का टेस्ट होता है, लेकिन एक्सेल का टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होता है. राइट, आपको एक्सेल परफॉर्म नहीं करनी है यहाँ पर. एक्सेल के एमसीक्यूज आते हैं, उसको क्लियर करना होता है. सो फर्स्ट इज वर्सेंट, आफ्टर दैट इट इज एक्सेल टेस्ट, एंड आफ्टर दैट इट इज अ बीपीटी टेस्ट. बीपीटी टेस्ट क्या है? बीपीटी टेस्ट इज बेसिकली बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट. राइट, बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके जज किए जाते हैं. अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. और इसके अलावा दे चेक लॉजिकल रीजनिंग एंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. राइट, ये सारे बीपीटी टेस्ट के अंदर कवर किए जाते हैं. तो पहला राउंड वर्सेंट, फिर एक्सेल और बीपीटी, ये क्लियर करने के बाद फिर 3 राउंड होते हैं इंटरव्यूज के. पहला राउंड होता है टेक्निकल, दूसरा राउंड भी टेक्निकल होता है, और तीसरा राउंड होता है एचआर राउंड. ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेस है डेलोइट की. लेकिन बिलीव मी, अगर आप डेलोइट क्लियर कर लेते हो तो आई थिंक दैट आपका कॉलेज ज्वाइन करना सक्सेस हो जाएगा. ठीक है, आज आप लोगों ने कॉलेज किसी पर्पस के लिए ज्वाइन किया है, एंड आई एम श्योर आप लोग आज अटेंड कर रहे हो सेशन, तो दैट इज प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स के लिए आपने कॉलेज ज्वाइन किए हैं और आपका कॉलेज ज्वाइन करना सक्सेस हो जाएगा. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आगे का जो सिनेरियो है वो बहुत अनसर्टेन है. सबसे पहली कंपनी जो आएगी कैंपस के अंदर वो अगस्त में डेलोइट आती है. राइट, राइट नाउ इट्स अप्रैल. मई, जून एंड जुलाई, ये 3 महीनों में अगर आपने अच्छे से फोकस करके तैयारी कर ली तो अगस्त में यू विल गेट योर डिजायर्ड प्लेसमेंट. अगस्त में अगर किसी का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, अगस्त सितंबर, जब भी जनरली अगस्त में पार्टिसिपेट करती है डेलोइट, तो उसके बाद फिर देयर इज एन अनसर्टेनिटी. आरसीसीएम यू ऑल नो बहुत कम स्टूडेंट्स को लेकर जाती है. कभी सिंगल डिजिट में ही लेके गई आज तक, और लेस देन 5 को ही लेके गई. सो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बनती है. अगर उसमें नहीं होता है तो फिर बहुत इम्प्रोबेबल है कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी कंपनी नहीं आएगी. सो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इसमें कि हमें डेलोइट में
पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये डाउट दिमाग से पूरी तरह निकाल देना चाहिए और इस कंपनी के लिए बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके दिमाग में कि सर हमारा टैक्सेशन में इंटरेस्ट कम है, तो भी क्या हम इस कंपनी के लिए तैयारी करें? तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट कम है तो भी आप इसकी तैयारी करो। अगर आपका एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है कैंपस के थ्रू, तो यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और उसके बाद आप ऑफ कैंपस किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ऑफ कैंपस में कंपनीज में पार्टिसिपेट करो। सो ये पॉइंट अपने माइंड में डाउट में मत रहिएगा कि क्या हम इस कंपनी के लिए जाएं या ना जाएं। मेरा पर्सनली मानना है कि जरूर जाना चाहिए। और अगर आपको ऑफ कैंपस किसी आपको अगर किसी और प्रोफाइल में भी जाना है तो उसके लिए आप फिर आगे ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट डेलोइट यूएसआई। इसके बाद एक कंपनी और रेगुलरली पार्टिसिपेट करती है, एसएनपी ग्लोबल, ये भी सुना होगा आपने। स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये भी हर साल आती है। बहुत कम साल ऐसे हैं कि जिसमें ये नहीं आएगी, लेकिन इसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। ये कभी दिसंबर में आती है, कभी जनवरी में आती है। इस बार तो ये अभी अप्रैल में आई है, राइट, बहुत ही लेट आई है। ठीक है। ये जनरली आती है डेटा रिसर्चर प्रोफाइल के लिए। इसमें एक बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, कई बार एक्सेल टेस्ट होता है, और फिर इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रोसेस जनरली वेरी करती है, लेकिन बायोमेट्रिक टेस्ट जनरली काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। तो बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो रही होगी इस पूरे डिस्कशन में, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द टेस्ट। आप लोगों के लिए जो सबसे पहली स्टेप है वो टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट। और आप लोगों के केस में देखोगे तो जीडीज बहुत कम हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस बहुत कम हो रहे हैं। कभी कंपनीज करवाती, कभी नहीं करवाती। डेलोइट का अगर मैं आपको पास ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ, तो डेलोइट ने रिटर्न टेस्ट नहीं, सॉरी, ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाया है। आरसीसीएम की बात करें तो आरसीसीएम ने ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाया है। एसएनपी ने कभी करवाया, कभी नहीं करवाया है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज लेस इन योर केस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। एचडीएफसी बैंक जब आई थी उन्होंने ग्रुप डिस्कशन करवाया था। इसके पहले जब हम बात करें मॉर्निंग स्टार, उसने ग्रुप डिस्कशन करवाया था। तो आप 50% केसेस लेके चल सकते हो। 50% केसेस में मान के चलो कि शायद ग्रुप डिस्कशंस नहीं हो। ठीक है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट, सो दैट आपको पता हो कि हमको कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद आगे चलते हैं। एक कंपनी आई थी विप्रो ब्लैकस्टोन, उन्होंने प्योरली टेक्निकल राउंड्स कंडक्ट करे थे वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग एनालिस्ट के लिए। एचडीएफसी, जैसा मैंने बताया था, क्रेडिट एंड डिजिटल बैंकिंग के लिए आए थे। जीडी, बायोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू, राइट, ये उनका प्रोसेस रहा था। तो फाइनेंस के स्टूडेंट्स को अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपको कैंपस में बहुत सारी तैयारी करनी है। आपको वर्सेंट भी तैयार करना है, आपको डेरिवेटिव भी तैयार करना है, आपको एक्सेल भी तैयार करना है, आपको अकाउंटिंग भी तैयार करना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स भी तैयार करना है, इंग्लिश भी तैयार करना है, बायोमेट्रिक टेस्ट भी तैयार करना है। ये सारी आपकी पढ़ाई में इंक्लूड होना चाहिए, ये सारे टेस्ट। तब आप एक तरह से मान सकते हो कि आप इन सब कंपनीज के लिए रेडी हो। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में। अगर आप देखोगे, डू वी गेट कोर फाइनेंस जॉब, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कोर फाइनेंस जॉब हार्डली 20% स्टूडेंट्स को मिलता है। और उसके लिए ये जो टफ प्रोसेस है, इस टफ प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। आप में से कितने, आई एम श्योर, कितना सभी लोग अपने सीनियर्स के टच में होंगे। ठीक है। आप अगर अपने सीनियर्स के टच में नहीं हो तो प्लीज गेट इन टच विथ योर सीनियर्स। आप किसी ना किसी एक या दो सीनियर के रेगुलर टच में रहो और उनसे सिनेरियो पूछते जाओ कि उनका कैंपस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, कहाँ उन्होंने गलती करी थी। ठीक है। बहुत सारी बातें तो वही आपको बता देंगे। ठीक है। कैन आई गेट इक्विटी रिसर्च रोल्स? डिपेंड करता है, इक्विटी रिसर्च के रोल्स कंपैरेटिवली कम आते हैं। ठीक है। हाउ मच इंपॉर्टेंस इंटर्नशिप हैज? आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर्नशिप को लेकर। अभी जो टाइम चल रहा है वो आपका इंटर्नशिप को लेकर चल रहा होगा कि आप सोच रहे हैं कि अभी हम इंटर्नशिप कहाँ से करें। ठीक है। नाउ डज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन जॉब? इंटर्नशिप का जॉब में इम्पैक्ट है क्या? तो द आंसर इज वेरी क्लियर दैट इट हैज ओनली
10% इम्पैक्ट। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। इनफैक्ट ये कुछ कैंडिडेट्स के एग्जांपल भी हैं। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडिडेट, ये मैंने एग्जांपल्स इसीलिए रेडी किए हुए हैं क्योंकि हर साल ही ये स्टूडेंट ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने डेलॉइट में जिनका प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक एक्सेल का कोई क्रैश कोर्स किया है, स्टॉक मार्केट का कुछ कोर्स किया है, गूगल डेटा स्टूडियो का कुछ कोर्स किया है। ठीक है, तो इस तरह के इन्होंने कुछ कोर्सेज करे थे। ठीक है, इन कोर्सेज का कोई फायदा इनको नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे किस चीज का फायदा हुआ, एंड ऑफ द डे इन्होंने वर्सेंट क्लियर करा और उसके बाद इनका सिलेक्शन, एज सिंपल एज दैट। तो ये कंपनी कभी भी ये नहीं पूछेंगी आपसे कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से करी है, उस बेसिस पे हम आपको सिलेक्ट करेंगे, नॉट एट ऑल। आपने अगर इंटर्नशिप दुनिया की बेस्ट कंपनी से भी कर ली और अगर आप वर्सेंट क्लियर नहीं कर पाए तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए इंटर्नशिप का जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, आपके फाइनल प्लेसमेंट में 10% से ज्यादा नहीं, ओनली 10%। ठीक है, सो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटर्नशिप ना करो या अच्छी जगह से ना करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बस मेरा ये है कि जितना आप अगर परेशान हो रहे हो इंटर्नशिप को लेके कि हमें बहुत अच्छी इंटर्नशिप करनी है, तो उसका मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि फाइनल प्लेसमेंट में इट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ नॉट मोर देन 10%। ठीक है, और 10% भी कैसे आएगा उसका वेटेज, इंटरव्यू में आपसे उसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपने इंटर्नशिप में क्या करा, दैट्स ऑल। कई लोग तो नहीं कर पाते हैं। कोविड में काफी लोगों ने इंटर्नशिप नहीं करी, तो क्या उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल है, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से सेल्स की इंटर्नशिप करी थी। राइट, सेल्स में कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम सेल्स की इंटर्नशिप नहीं करेंगे क्योंकि हम तो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन ये दूसरा एग्जांपल है आपके पास, आपके सामने, जिनका एसएनपी ग्लोबल में सिलेक्शन, इन्होंने सेल्स में करी थी। फिर कोई एक जन कल्याण मल्टीपर्पज सोसाइटी से करी थी। राइट, तो ऐसी इंटर्नशिप्स भी करके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट है, इन्होंने तो डिजिटल मार्केटिंग में ही ट्रेनिंग कर ली थी। मार्केटिंग तो आप समझ रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। इनका सिलेक्शन भी डेलोइट यूएसआई में हो गया। तो मेरा कहने का बहुत सिंपल मतलब है कि आप लोग इंटर्नशिप को लेके बहुत परेशान मत हो। एक रीजनेबली गुड कंपनी में इंटर्नशिप करिए। 45 डेज में कोई बहुत ज्यादा आप सीख नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। 45 डेज इज वेरी लेस टू लर्न एनी न्यू थिंग। जितना भी सीखना है आपको सेल्फ लर्निंग ही करनी है, कंपनी बहुत ज्यादा नहीं सिखाती है। एक ही पर्पस होना चाहिए हमारा कि हमें अगर बड़ा ब्रांड मिल जाता है, राइट, जैसे कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से करा, तो आईसीआईसीआई बैंक इज अ बिग ब्रांड। ठीक है, तो आपको बताने के लिए एक अच्छा हो जाता है कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक से इंटर्नशिप करी है। किसी को भी इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपने वहां पर क्या काम किया है। ये बात अगेन मैं आपको बोलूंगा, किसी को भी इस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि आपने वहां पर क्या काम किया है। आपके पास बड़ा ब्रांड है और आपने थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट को समझा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वहीं अगर मैं एमबीए मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो एमबीए मार्केटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटर्नशिप में, और इंटर्नशिप की वर्किंग भी, क्योंकि उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंटर्नशिप से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वही उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया होता है। और आप लोगों के केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बजाय सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा वेटेज मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों मार्केटिंग और फाइनेंस के बीच में डिफरेंस है। और इसलिए मेरा ये सजेशन है कि एक रीजनेबली गुड कंपनी सिलेक्ट करो, फोकस पूरा प्लेसमेंट्स के ऊपर रखो आप। ठीक है, ये बात आई श्योर कि आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इज इट इम्पोर्टेंट टू ऑप्ट फॉर सर्टिफिकेशन कोर्सेज? राइट, सर्टिफिकेशन कोर्सेज का इंपॉर्टेंस है क्या? देखो, सर्टिफिकेशन कोर्स का भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेट करा, हमने एक्सेल का सर्टिफिकेट करा। अच्छी बात है, मतलब डेफिनेटली ये एक फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए अच्छे सर्टिफिकेशन है। एनआईएसएम का सर्टिफिकेट करा, अच्छा सर्टिफिकेट है। लेकिन सवाल ये है कि आपने वहां से कुछ सीखा या नहीं सीखा, या केवल आपने एक सर्टिफिकेट लेने के लिए सर्टिफिकेट लिया है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और जब मैं उनसे मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो किसी का भी आंसर नहीं दे पाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर इसमें से मैं सब हटा रहा हूँ। तो फिर आपने सर्टिफिकेशन करा ही क्यों? जब आपको हटाना ही था तो फिर सर्टिफिकेशन क्यों करा?
इसलिए मेरा सजेशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो सर्टिफिकेशन करो, कम करो सर्टिफिकेशन, लेकिन उसमें सीखो आप जो भी वो उसका कंटेंट है। अगर वो फाइनेंशियल मॉडलिंग है तो वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सेल, सब कुछ अच्छे से सीखो आप, ताकि आप इंटरव्यूज में जवाब दे पाओ। तो क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। और अगेन, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन करो, या ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इंटर्नशिप करो। कहीं पे भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं आती चीजें। ये करना चाहिए जस्ट फॉर आवर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर है आपको। क्वांटिटी में मत जाइएगा। कई लोग बोलते हैं हम दो इंटर्नशिप कर लें, क्या क्या फायदा हो रहा है उस दो इंटर्नशिप का? एक इंटर्नशिप कर लो, दो इंटर्नशिप में आप पूरी तरह बिजी हो जाओगे। वैसे कॉलेज बिजी रखता है हर स्टूडेंट को, कमिटीज बनती है, इवेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आप वैसे ही इतने बिजी हो। फिर उसके बाद आप दो दो इंटर्नशिप करोगे, वहां बिजी हो जाओगे। फिर कोई सर्टिफिकेट करोगे, वहां बिजी हो जाओगे। तो फिर आप कैंपस के लिए टाइम कब निकालोगे? सडनली आपके सामने वर्सेंट टेस्ट आ जाएगा। जो लोग वर्सेंट क्लियर कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमको इन सर्टिफिकेट और कोर्सेज का फायदा क्या होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने सीनियर्स के टच में रहिए और उनकी मिस्टेक से सीखते जाइए। ये मैं मिस्टेक्स ही बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम मिस्टेक्स। और आई एम श्योर 22-24 की जो बैच है, अ, अभी भी आपके कॉलेज में आप जाते होंगे, मिलते होंगे आपको अपने सीनियर्स, तो देखोगे आप मैक्सिमम आर अनप्लेस्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कोर फाइनेंस के। तो ये हमारा फोकस अगर प्लेसमेंट है और हम चाहते हैं कि हमने कॉलेज एमबीए इसीलिए कर रहे हैं कोर फाइनेंस के लिए, तो हमारा क्लियर फोकस होना चाहिए कि हम प्लेसमेंट्स के ऊपर ही ध्यान दें। ठीक है, सो लिमिटेड सर्टिफिकेशन करिए और उसमें सीखिए। जो भी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो उसमें लर्निंग करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुड बी वेट फॉर राइट प्रोफाइल और सिलेक्ट दी कंपनी। जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कंपनीज कम आएंगी, तो जो अच्छी कंपनीज आ रही है उसमें वेट मत करिए, इमीडिएटली ले लीजिए। अगर डेलोइट मिलती है डेलोइट ले लो, आरसीसीएम मिलती हो तो ऑब्वियसली लोगे ही आप, एचडीएफसी मिलती है वो ले लो। मतलब प्रोफाइल के लिए वेट मत करिए। अगर प्रोफाइल चाहिए भी तो कॉलेज कैंपस से एक अच्छी कंपनी लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छी प्रोफाइल नहीं मिली है तो फिर ऑफ कैंपस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट एक क्वेश्चन होता है कि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसका आंसर है आपके परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेजेस के क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग क्राइटेरियाज लेकर आती है। इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, सो 60%, डेलोइट यूएसआई 60% का क्राइटेरिया लेकर आई थी, अगर मुझे अच्छे से याद है। तो आई हैव टू अगेन रेफर माय डेटाबेस। लेकिन जहां तक मुझे ब्रॉडली ध्यान है, 60% 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज होगा तो वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया उनका होता है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो क्या, मतलब आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में करा है या नहीं करा है, या तो कॉमर्स में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब बीबीए या बीकॉम। किसी ने अगर इंजीनियरिंग, बी आपका अगर बी बैकग्राउंड है, या आपका बीबीए बैकग्राउंड है, सॉरी आपका बीए बैकग्राउंड है, या बीटेक बैकग्राउंड है, तो उन स्टूडेंट्स को डेलोइट यूएसआई टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए नहीं शॉर्टलिस्ट करती। तो ऐसे कुछ कंपनीज के क्राइटेरियाज भी होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। दैट ऑल्सो आई विल शेयर इन माय अपकमिंग सेमिनार्स। उसमें मैं और डिटेल में आपको एक एक कंपनी का जो क्राइट सिलेक्शन, सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बता दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो उसके ऊपर, तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हमारे लिए ये कंपनी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। Right, so I believe this part is clear so far. Now, third, if we'll talk about that is campus preparations. Yes, campus preparations के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपका resume shortlist होगा based on mostly it is marks and the graduation stream, जो आपने graduation की stream select करी थी उसके basis पे ये generally shortlisting होती है। उसके बाद अलग अलग तरह के टेस्ट, वर्सन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश, एक्सेल, अकाउंटिंग, बायोमेट्रिक, ये सब टेस्ट होते हैं।
सेकंड राउंड जनरली ग्रुप डिस्कशन होता है। आप लोगों के केस में 50% कंपनीज जनरली जीडीज ऑर्गेनाइज करती हैं। फिर टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, और फिर फाइनल एचओडी राउंड, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राउंड होता है। ठीक है, सो ये जनरली राउंड्स आपको फेस करने हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, तो ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे अपने सीईटी और सीमैट के टाइम पर, जिसमें हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, सीक्वेंसिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशनशिप्स, सो ये सारे ही टॉपिक्स आपको वापस कवर करने चाहिए। क्योंकि कंपनीज जैसे कि हम बात करें, डेलोइट का जो बीपीटी टेस्ट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, और ये पैटर्न लगभग लगभग रिपीट होता है, राइट? बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने सीईटी और सीमैट दिया है, तो वहां से आप ये बातें वापस रिपीट कर सकते हो, इसमें अपनी स्पीड बनाइए वापस से। और ये एक पार्ट होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फॉर फ्यू ऑफ द कंपनीज, राइट? जैसे अगर हम बात करें आरसीसीएम की, आरसीसीएम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने बात करी थी कि 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स या 25 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स, उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। सो अगेन लिटिल बिट डू दी वर्किंग ऑन दिस वन। ठीक है, ये एक टफ पार्ट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये ऑलरेडी फेस कर चुके हो। सो इट इज जस्ट अ रिपीटेटिव प्रैक्टिस जो आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वर्सन टेस्ट, ये जैसे हमने बात करी डेलॉइट ही ऑर्गेनाइज करता है। और एक बार कंपनी ने पार्टिसिपेट कराया था, उसका नाम है अलायंट ग्रुप, राइट? सो डेलॉइट और अलायंट, अगर आप अलायंट ग्रुप देखोगे तो कई स्टूडेंट उसको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो डेलॉइट के लिए सबसे पहला राउंड है वर्सन टेस्ट। वर्सन टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अबाउट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज ऑन एवरीडे टॉपिक एंड टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, इसमें 6 सेक्शंस होते हैं, सॉरी 5 सेक्शंस होते हैं। रीडिंग रिपीट, सॉरी 6 होते हैं: रीडिंग, रिपीटिंग, आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, सेंटेंस बिल्डिंग, स्टोरी रीटेलिंग, एंड 1 मिनट स्पीच। ऐसे 6 राउंड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको सेंटेंस रीड करना है, आपको सेंटेंस रिपीट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है, सेंटेंस बिल्ड करना है, स्टोरी रीटेलिंग करना है, और 1 मिनट के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर बोलना होता है। तो ये बेसिकली वर्डसन टेस्ट है। 20 से 25 मिनट का ये टेस्ट होता है। जो ये क्लियर कर लेता है, राइट, उनके सिलेक्शन के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। अगर मोटा मोटा मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बोलता हूँ, तो अगर 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें से 30 स्टूडेंट्स का वर्सन क्लियर होता है, और उन 30 में से करीब करीब 15 का पीपीटी और एक्सेल क्लियर होता है, और उन 15 में से करीब करीब 7 से 8 लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं। 100 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो 7 से 8 लोग सिलेक्ट होते हैं जनरली। ये एक ब्रॉड आप स्टेटिस्टिक्स ले सकते हो डेलोइट के लिए। एक्सेल टेस्ट, अगेन एक्सेल टेस्ट, एक्सेल पे अच्छी कमांड होना जरूरी है हमें। कुछ सर्टेन शॉर्टकट्स, वी लुकअप, पाइवट, फिल्टर्स, चार्ट्स, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल इज रिक्वायर्ड। और एक्सेल का टेस्ट कुछ कंपनीज करवाती हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी करवा सकती हैं। आपको बता देंगी, एक स्प्रेडशीट दे देंगी, और उस स्प्रेडशीट को आपको बता देंगे कि आपको इस तरह से उसको फिल करना है। और कुछ कंपनीज एमसीक्यू बेस्ड एक्सेल टेस्ट कराती है, जैसे कि डेलोइट। डेलोइट एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट कराती है, उसमें वो शॉर्टकट्स पूछते हैं, उसमें वो कमांड्स पूछते हैं, उसमें वो थोड़ा एक्सेल का थ्योरेटिकल आउटलुक भी पूछते हैं। तो ऐसे करके उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट एक्सेल, राइट? कई बार पैरा राइटिंग, ऐसे राइटिंग टाइप के भी राउंड हो सकते हैं। ठीक है, सो और जैसा मैंने आपको बताया, फॉर आरसीसीएम, आरसीसीएम में जो टेस्ट होते हैं, दैट इज प्योरली प्योरली एक बड़ा फोकस उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर होता है, और उसमें डेरिवेटिव का पार्ट एक बड़ा पार्ट होता है जो कि कवर किया जाता है। ठीक है, अभी तक के डिस्कशन में, अभी तक के डिस्कशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए।
बताइए बताइए, यस। हेजिटेट मत होइए जरा भी। सभी लोग नए हैं, राइट? सभी लोग मेरे ख्याल से पहली बार ही अटेंड कर रहे हैं सेशन। ठीक है, तो डू नॉट वरी। अगर आप, तो कोई भी सवाल हो तो ऐसे मत सोचो कि हम ऐसा कोई बेसिक सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं। कोई भी सवाल हो पूछ लेना चाहिए। चलिए, एनीवेज अगर आप लोग को सवाल नहीं है तो मैं आपसे लास्ट में कुछ सवाल पूछूंगा। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ओके? एंड दोस क्वेश्चंस आर बेसिकली द एक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट कैंपस। आप में से जो लोग उसका आंसर करेंगे दे विल गेट द प्राइजेस, हम लोग उसको प्राइज देंगे। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट बी पार्टिसिपेटिव इन दैट। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं समझता हूँ आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप में से काफी हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो लोग जिनका पहले फाइनेंस में बैकग्राउंड ना रहा हो, जिन्होंने फाइनेंस नहीं पढ़ा हो, जैसे कि लाइक समबडी हु इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो ये हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने कुछ सब्जेक्ट्स कवर करे होंगे। लेकिन एक चीज होती है कि जो थर्ड सेमेस्टर होता है हमारा, थर्ड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स। लेकिन ये जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, ये थर्ड सेमेस्टर खत्म होने के पहले ही पार्टिसिपेट कर लेती हैं। मतलब कि हम अगर बात करें आरसीसीएम की, तो वो सितंबर में पार्टिसिपेट कर रही है। हो सकता है तब तक आपके ये टॉपिक्स कवर ना हो कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बाद में आपके सिलेबस में आएंगे, लेकिन कैंपस में वो पहले ही पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, गैप ईयर से प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है क्या? ओके, तो गैप ईयर से कुछ कंपनीज की अगर हम बात करें तो यस, डेफिनेटली दैट्स ट्रू दैट दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ गैप ईयर। ठीक है, और सिंस ये क्वेश्चन आया है तो मैं आप लोगों को एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कंपनीज का, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हम लोग उसमें एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। All right, so you will find this is अगर हम बात करें कुछ कंपनीज की, और ये नहीं बोलूंगा मैं कि ये फाइनल है। ये डेटा हर साल हो सकता है थोड़ा थोड़ा बदलता हो, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे फंड अकाउंटिंग आरसीसीएम की, राइट? आरसीसीएम में क्या कोई क्राइटेरिया है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं क्या? तो यस, ये कंपनी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एवरी वन कैन अपियर फॉर दिस वन। इसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं, कोई क्राइटेरिया। लेकिन एक कंपनी आई थी जेड एस एसोसिएट करके नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, वहाँ क्राइटेरिया था क्या? तो वहाँ क्राइटेरिया था, वहाँ कितने का क्राइटेरिया था? टेंथ और ट्वेल्थ में 70% प्लस और ग्रेजुएशन में 65%। ठीक है, इसी तरह से एक कंपनी इसके भी पहले आई थी, जैसे एक विप्रो करके, विप्रो ब्लैकस्टोन आई थी एक कंपनी, उसका क्या क्राइटेरिया था? 60% प्लस। ठीक है, और बीबीए, बीबीएम और बीकॉम, इन्हीं को उन्होंने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बीबीए, डेलोइट का भी यही क्राइटेरिया है, बीबीए, बीकॉम और बीबीएम। ठीक है, सो दैट इज फॉर फ्यू ऑफ द कंपनीज। फिर डेलोइट एक बार रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए आती है, तो वहां पर वो टेक्निकल स्टूडेंट्स को ले जाती है, बीएससी, बी टेक जिन्होंने करा है, अगर रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए वो आती है। पूर्णार्थ आई थी 60% प्लस, प्रिज्म जॉनसन 60% प्लस। ठीक है, तो जो मेन आपका सवाल था कि क्या गैप ईयर मैटर करता है, तो कुछ कंपनीज के लिए मैटर करता है, लेकिन वो कंपनीज ने भी आज तक गैप ईयर को डिफाइन नहीं करा है कि गैप ईयर का मतलब क्या है।
अगर किसी कंपनी ने बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो फिर आप मान सकते हो कि हाँ, इन्होंने क्लियरली डिफाइन करा है। अदरवाइज गैप ईयर के बहुत मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरे ख्याल से आपको पहले वो क्लैरिटी लेनी चाहिए अपनी प्लेसमेंट सेल से, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। मेरा मानना ये है कि गैप ईयर अगर डिफाइंड नहीं है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन अगर आप इसके 60% के ऊपर है तो मेरे ख्याल से आप काफी सेफ हो। 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर 60% प्लस में आप सेफ हो। 70% में तो आप समझो कि अगर कोई स्पेशल कंपनीज भी आएंगी तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो, मतलब उसमें भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को, कि हम लोगों ने बीकॉम बीबीए नहीं किया है, हमने बी करा है या बीए किया है, तो क्या हमारे लिए कंपनीज आएंगी? तो ये भी एक रियलिटी है कि आप लोगों के लिए नंबर ऑफ कंपनीज विल बी लेस, कम कंपनीज आएंगी। मतलब जितनी कंपनीज बीकॉम के लिए आ रही हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, उसकी मान के चलो आपकी 50% कंपनीज आएंगी। ठीक है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। मेंटली प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल अपने आप को एक समझा रहे हो। मेंटली प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि अब आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या हैं, उन ऑप्शंस को देखते जाओ। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक दो बातें जरूर बोलूंगा, कि दैट यू शुड गो एंड वॉच सम ऑफ द गुड लेक्चर्स। ठीक है। हम लोग हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ काफी लेक्चर्स करते रहते हैं, और मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर जाकर, ओके, यहाँ पर अगर आप जाओगे एमबीए में, एमबीए फाइनेंस सेक्शन में अगर आप जाते हो, सो अपार्ट फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग, राइट, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट में यू विल फाइंड दीज फ्री रिसोर्सेज। ठीक है। ये फ्री रिसोर्सेज में मेरे ख्याल से तीनों ही कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्वर्सेशन है हमारा समर्थ अस्साटी के साथ में। समर्थ अस्साटी के साथ आरसीसीएम में इनका प्लेसमेंट हुआ था। ये जरूर आपको देखना चाहिए, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया था। दूसरा कन्वर्सेशन हमारा हुआ था विशाल के साथ में। विशाल ने 8 कंपनीज में पार्टिसिपेट करा था, 8 कंपनीज में रिजेक्ट होने के बाद वो फाइनली 9th कंपनी में प्लेस हुए थे। तो ये भी एक पूरी जर्नी है जो आपको देखनी चाहिए। और एक हमारा डिस्कशन होता पीयूष के साथ में। पीयूष इज बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, और राइट नाउ ही इज वर्किंग फॉर एंड ही हैज गॉट 4 जॉब्स ऑफर्स। 4 कंपनीज में सेलेक्ट हो गए थे आखिरी तक आते आते। मैंने इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, इन सभी लोगों के साथ में। हम लोग बहुत क्लोजली स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। तो इन लोगों का मैंने फ्रस्ट्रेशन भी देखा है कि कंपनीज आ ही नहीं रही हैं, कब होगा सिलेक्शन एंड ऑल दैट। बट आप इस बात को समझो कि फाइनली पीयूष ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन आरसीसीएम। मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी ही हैज नाउ मेड हिज प्लेस इन आरसीसीएम थ्रू ऑफ कैंपस। ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा अच्छे से प्लान करोगे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप बहुत प्लानिंग से चल सकते हो। जस्ट अगेन यू कैन रेफर आवर प्रोग्राम फॉर कैंपस प्रिपरेशंस फॉर एमबीए फाइनेंस। यू कैन सी ऑल द डिटेल्स हियर, राइट। आई शेयर द लिंक। दीज आर दी कंपनीज, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि वी हैव 35 days प्लान, राइट। इस 35 days प्लान के अंदर वी कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो कुछ भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, और अगर आप लोग उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हो तो आई एम श्योर कि आप लोग फाइनेंस में काफी स्ट्रांग हो चुके हो। ठीक है। सो आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। जो लोग भी आंसर देना चाहते हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप अनम्यूट करें अपने माइक को और आंसर दीजिए। और जो जिनके भी आंसर्स करेक्ट रहेंगे दे विल गेट द प्राइज, राइट। इमीडिएटली दे विल गेट द प्राइज फॉर दैट। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कंप्यूटिंग डेट इक्विटी रेशियो विल यू इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स? जब आप डेट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करते हो तो क्या आप प्रेफरेंस शेयर्स को
इंक्लूड करते हो इसके अंदर या नहीं इंक्लूड करते हो? जो भी आंसर देना चाहते हैं इस अपना माइक अनम्यूट करें और बोलें। डेट इक्विटी रेशियो सबने पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो इस रेशियो में क्या इक्विटी का पार्ट होता है? प्रेफरेंस शेयर्स। यस। इज डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर पार्ट ऑफ दैट और नॉट? ऑल राइट। Yes, sir, it will be included. Okay, finally, I got one answer. And Anuj, yes, you're right, absolutely right. That preference shares are part of equity, right? When we compute that equity ratio, preference shares को हम include करते हैं उसके अंदर. Yes, very good job. So Anuj, definitely prize for you. और मैं बता दूंगा आप लोगों को लास्ट में कि आपको प्राइस कैसे क्लेम करना है अपना. Okay. बैंक्स और एनबीएफसीज, यस, में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, एचडीएफसी बैंक ने पूछा है क्वेश्चन, बैंक्स और एनबीएफसी, राइट, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज? गूगल यूज अगर आप लोग कर रहे हो तो मत करिए प्लीज। सर बेसिकली बैंक जो होती है एक गवर्नमेंट ऑथराइज होती है, जबकि एनबीएफसी एक तरह से कंपनी होती है जो कि बैंक के सर्विस को प्रोवाइड करती है, तो बिना किसी बैंक के लाइसेंस के सबके। और जो बैंक होती है वो आपका एक गवर्नमेंट ऑथराइज होती है। एनबीएफसी एक प्राइवेट कंपनी मान सकते हैं उसको, एक कंपनी की तरह उसको ले सकते हैं। ओके, ऑल राइट। और क्या इसमें डिफरेंस है? ओके, गुड ट्राई, एनीवेज गुड आंसर पीयूष, लेकिन एक परफेक्ट आंसर, हाँ, यस, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो एनबीएफसीज डोंट डजंट टेक डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेती है, राइट? पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेती है एनबीएफसीज। मतलब कि आप बैंक में जैसे पैसा डिपॉजिट करते हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बनाते हो, ऐसा एनबीएफसीज नहीं कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, बट एनीवेज गुड पीयूष, एटलीस्ट यू ट्राइड। और मेरे ख्याल से कैंपस की तैयारी की जो पहली स्टेप है, वो पहली स्टेप है दैट वन हैज टू ट्राई। ओके, और अच्छी बात है आपने ट्राई करा। सो पीयूष एंड हिमांगी, राइट, you got the prize for this question, that what is the difference between NBFCs and banks? Okay, good job. Right, इसके बाद आगे चलते हैं। Debtor turnover ratio of company A is 3 and company B is 4, right? Debtor turnover ratio, रेशियो एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है? इसका आंसर आपको गूगल पे तो नहीं मिलेगा। जस्ट दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है? कंपनी बी इज बेटर। क्यों बेटर है? अनम्यूट करिए अनुज। ओके, ऑल राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज कंपनी बी इज बेटर। यस, आंसर करेक्ट है आपका, लेकिन द राइट रीजन फॉर दैट इज दे आर मोर इफिशिएंट इन देयर कलेक्शंस, राइट? वो अपना कलेक्शन बेटर करते हैं, राइट? तो दैट इज द राइट आंसर। ओके, if someone has heard about beta, what do you understand by beta? बीईटी है बीटा, अगर किसी ने सुना हो तो एक ब्रॉड आंसर भी आप दे सकते हो अगर किसी ने सुना हो अबाउट बीटा।
सर ये कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखता था ओवरऑल मार्केट से, स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी होती स्टॉक है। की वॉलेटिलिटी, वेरी गुड आंसर, यस, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द रिस्क associated with any stock or राइट। any particular market. Okay, good answer, Piyush. All right. Buying a machine is operating, financing or investing activity. आपने देखा होगा कैश फ्लो में, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हो तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो एक मशीन को खरीदना ये कौन सी एक्टिविटी में आता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? वेरी गुड आंसर, यस, ध्रुव हैज गिवन द राइट आंसर, बेसिकली इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, गुड जॉब। All right. So for this question, yes, we've got the right answer from Dhruv. Okay, good job. It's an investing activity. ठीक है, ये बड़ा important part है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? What is contingent liability and how it is different from provisions? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। What is the balance of prepaid liability account, डेबिट और क्रेडिट? हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? What is the balance of prepaid liability account? डेबिट, डेबिट, डेबिट। All right. So Anuj, Dhruv, and Kashish, yes, you have given this answer. Okay. All right. So this is the right answer. Basically, if we have prepaid any of the liability, for example, rent है आपका, रेंट को आपने प्रीपे कर दिया, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको पहले से ही पे कर दिया, तो उसका बैलेंस क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। ठीक है, सो दैट इज दी। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में देखोगे तो इसमें क्या क्या हमने कवर करा है, राइट? अब आप लोग एक ब्रॉडर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करिए। ब्रॉडर लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि हमें टॉपिक्स पढ़ना क्या है जब हम कॉलेज में हैं। तो कॉलेज में आपको किन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस। तो अगर आप इसको क्लासीफाई करोगे तो तीन सब्जेक्ट्स निकलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। पहला सब्जेक्ट निकलेगा अकाउंटिंग। 11th और 12th का जो अकाउंट्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कोई भी रोल देख लो, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें दिखेगा कि अकाउंट्स का पोर्शन पूछा गया है। जर्नल एंट्रीज पूछी गई है, लेजर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ट्रायल बैलेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। लगेंगे सिंपल आपको, लेकिन जब मैं अकाउंटिंग का सेशन क्लास में कंडक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ 80% स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं सिंपल सिंपल जर्नल एंट्रीज के लिए। तो जर्नल एंट्रीज अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, 11th 12th का जो अकाउंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। पूरे ही कैंपस में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जितने क्वेश्चंस अभी हमने कवर करें, इसमें देखिए आपने कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कैश फ्लो मैनेजमेंट आ गया, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, राइट, फंड फ्लो रिलेटेड आ गए क्वेश्चंस, जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन, ये इनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो एक अकाउंट्स के ऊपर अच्छा फोकस करिएगा जब आप कॉलेज में पढ़ाई करो तब। दूसरा टॉपिक जो आप फोकस करो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन चार पार्ट हैं कॉलेज में जो ब्रेक कर देते हैं। सो एक पोर्शन होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, एक होता है रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, एक होता है कैपिटल बजटिंग, एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एक होता है डेरिवेटिव्स। सो ये सारे ही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए, लेकिन उसका कैंपस से कोई भी ज्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स भी आई एम नॉट श्योर कि टैक्स आपको कौन से सेमेस्टर में है। कोई बता सकता है मुझे? टैक्सेशन आप पढ़ चुके हो या आप अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे? ऑलराइट, टैक्सेशन जो भी सिनेरियो है आपका, अगले सेमेस्टर में भी अगर आप पढ़ते हो तो
ये बात ध्यान रखनी है आपको कि टैक्स डेलॉयट टैक्सेशन के लिए आती है और वो अगस्त में आ जाती है, इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो उसके पहले ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए हमें। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, टीडीएस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है। तो टैक्स से रिलेटेड एटलीस्ट ये जो 5-6 बातें हैं ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेलॉयट यूएसआई विल बी कवरिंग इन देयर इंटरव्यू राउंड्स। ठीक है, फाइनेंस की तो हमने बात कर ली है। इसमें डेरिवेटिव्स एक सबसे ज्यादा टिपिकल टॉपिक है। क्लास में भी जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत डेरिवेटिव्स में ही आती है। ठीक है, तो आप अभी से अगर उसको पढ़ेंगे तो ही आप उसको एक प्रॉपर कवरेज, मतलब एक अच्छे से आपका कवरेज तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर है? अभी तक में कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट सो फार? हम लोगों का जो सेशन रहेगा कैंपस के लिए, वो टोटल सेशन करीब 35 डेज का सेशन होता है। एंड इन दैट वन यू विल गेट दिस इज द डिटेल्स ऑफ दैट रेज्यूमे, ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सब तो कवर होते ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसके लिए हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं वो है टेक्निकल प्रिपरेशंस। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। आज भी अकाउंटिंग के क्वेश्चन सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं। आप लोग अगर अभी तक ग्रुप, मेरे ख्याल से सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुके हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग रेगुलर क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एक्टिवली उनको आंसर करोगे। सो अकाउंटिंग सेशन इज वन थिंग, टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दैट विल कवर इन डे 4 and day 5. Day 6 and 7 will cover valuation and financial modeling. Day 8 and 9 ratio analysis. Day 10 will be financial management, capital budgeting. 5 दिन हम पूरे देते हैं डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस को, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आरसीसीएम। 16 to 19 बॉन्ड स्वैप, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड अदर रिमेनिंग आरसीसीएम टॉपिक्स, राइट। तो करीब 10 दिन की तैयारी केवल आरसीसीएम के लिए होती है। डेलॉइट का जो टेस्ट है, राइट, दैट इज ऑन डे 20, 21, 22, यानी कि वर्सन टेस्ट, एमएस एक्सेल एंड प्रैक्टिस टेस्ट। तो अगर आप देखोगे कि करीब करीब 20 days वी स्पेंड ऑन टेक्निकल टॉपिक्स, अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, डेलॉइट का टेस्ट और एक्सेल, एमएस एक्सेल, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स आपके इन 20 दिनों में कवर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एचआर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, जीके सेशन एंड गाइडेंस ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट, बायोमेट्रिक टेस्ट एंड परसेंटेज टेस्ट। सो कहने को ये 35 डेज की क्लास है, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर चलती है। थ्रू आउट द ईयर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनका अभी भी एसएनपी ग्लोबल में अभी सिलेक्शन हुआ है और अब उनके इंटरव्यूज लाइंड अप है, उनको भी हम लोग अभी भी गाइड कर रहे हैं। सो एक कोर तैयारी जो है वो आपकी इन 35 डेज में हो जाती है, लेकिन ये तैयारी आपकी आखिरी तक चलती रहती है जैसे जैसे आप कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो ये एक पार्ट था रिगार्डिंग what we are currently helping, how we are currently helping. लास्ट पार्ट जो है हमारे इस डिस्कशन का वो है बेसिकली सेल्फ क्लैरिटी। मेरे ख्याल से आप एमबीए के स्टूडेंट को अगर मैं जनरली देखता हूँ और पिछले सालों में जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 500 स्टूडेंट्स हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच में आए। करीब करीब एक आध करीब टोटल 1,000 से ज्यादा बार मैंने उनके ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट करे। सभी के इंडिविजुअली रेज्यूमे देखे हैं, उनकी इंटर्नशिप देखी है, उनका करियर देखा है। 5 साल से मैं उनका करियर ग्राफ देख रहा हूँ, जो जिस कंपनी में गया उस कंपनी में खुश है या नहीं है। तो बहुत क्लोजली आई हैव पर्सनली मॉनिटर्ड ऑल दीज थिंग्स। और इसीलिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करूंगा यहाँ पर बोलकर कि सेल्फ क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हम कई बार अनक्लियर होते हैं तो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फोकस है वो फोकस इस सीक्वेंस में ही रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैंपस प्रिपरेशंस को दीजिए। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग कैंपस प्रिपरेशन की क्लास रन करते हैं, हम लोग तो सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग एक्सेल की क्लास भी करते हैं, पावर बीआई भी कंडक्ट करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कंडक्ट करते हैं।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कैंपस प्रिपरेशन की क्लास कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम लोग तो सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशंस को मैंने लास्ट कैटेगरी में रखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कैंपस प्रिपरेशंस, इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, एंड लास्ट सर्टिफिकेशन, राइट? इस सीक्वेंस में आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और यही फोकस आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं आपको बोलूंगा, आपने कितनी भी अच्छी जगह से सर्टिफिकेट लिया हो, कितनी भी अच्छी जगह से आपने इंटर्नशिप करी हो, लेकिन अगर आपका आरसीसीएम का टेस्ट नहीं निकलेगा तो उन सर्टिफिकेट्स का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेशंस में ये मत करिएगा कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए। आई एम 100% इन फेवर ऑफ क्वालिटी, राइट? एक सर्टिफिकेट लो, सीखो उसमें क्या चीजें हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेट ले रहे हो तो एक सर्टिफिकेट लो, लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेट डेलोइट में काम आएगा? तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा काम में? क्योंकि डेलोइट की जो प्रोफाइल है वो टैक्सेशन की प्रोफाइल है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उसका एंड ऑफ द डे कैंपस सिलेक्शन में क्या इम्पैक्ट है, कैंपस या ऑफ कैंपस में हमको कहाँ काम आएगा, बिना वो सोचे समझे अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट करोगे तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए हर चीज को अच्छे से असेस करिए, और अपने आप से एक ही सवाल पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे कैंपस से कनेक्ट हो रहा है, या ऑफ कैंपस क्या मेरे जॉब से कनेक्ट हो रहा है, क्या मेरे प्लेसमेंट से कनेक्ट हो रहा है। ये सवाल पूछ के ही आपको बहुत सारी क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। Right. So these are some of the points that I wanted to cover in this particular session. In the nutshell, basically, prepare well for the selection test. Resume introduction अच्छा बनाइए। इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट, यस। कई लोग ये भी एक सवाल होता है कि क्या हम कोई लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप अगर नहीं मिल रही है, या इंटर्नशिप से रिलेटेड भी अगर आपको डाउट हो। सो ये जो पूरा हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, it's a certification program. We provide you a certificate also in this one. So this also someone can use because it's a finance industry readiness certificate program, right? So this also can be useful for whatever purpose you are doing. But इसका purpose again जैसा मैं बोल रहा हूँ कि certificate secondary है, primary purpose is learning, right? Learning है इस particular पूरे program का एक जो purpose है, उस पर focus करना है आपको। प्रिपेयर सर्टन केस स्टडीज, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लीजिए, ठीक है। एंड अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाइए, लिंक्डइन पे आप लोग कनेक्ट करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ठीक है। तो ऑल्दो ऑफ कैंपस के लिए तो लेट ये सब चीजें आपको लगेंगी। अगले साल कभी आपकी इच्छा हुई कि हमको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना है, तो दैट डेफिनेटली स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। उसके लिए पूरा साल है आपके पास। अभी पूरा फोकस अपना कैंपस पे लगाइए, और वो भी उन फ्यू कंपनीज के ऊपर। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो कंपनीज आ रही हैं, दिवाली के पहले तक मैक्सिमम का अच्छी कंपनीज आ जाती हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस करिए। और उसके बाद कोशिश ये करिए कि हम लोग ऑफ कैंपस बाद में कोई अगर और भी कोई एडिशनल जॉब मिलता है तो उसको कर पाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर कि थोड़ा सेशन क्विक था, लेकिन क्योंकि ये पहला सेशन था इस 23-25 बैच के लिए, तो मैंने कोशिश ये करी कि मैं हर टॉपिक को टच कर दूं। अभी डिटेलिंग में नहीं गया मैं किसी भी टॉपिक में। अब हम लोग हर टॉपिक के आगे डिटेल में जाएंगे। डेलॉइट की पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में कवर करेंगे, आरसीसीएम की प्रोसेस को कवर करेंगे। तो आगे के सेशंस इस तरह से रहने वाले हैं। और अब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर सेशन हो तो उसको डेफिनेटली अटेंड करिए। मैक्सिमम सेशंस अभी ओपन सेशंस रहेंगे, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली डू कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो लोग आज प्राइज जीत चुके हैं, ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल देयर नेम्स। अनुज, पीयूष, हिमांगी, ध्रुव, एंड कशिश, राइट? सो 5 of you have won prizes in you given good answers. Okay, good job. And this is, I think, this represents that okay, you are on the right track.
I'm just mentioning the office number, right? Just send your mobile number or UPI ID, whatever you are using. They will give the cash price, right, on that number. राइट सो द ऑफिस नंबर इज 9977210757. इसके ऊपर आप अपना यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर भेज दीजिए. दे विल ट्रांसफर द कैश प्राइस. राइट सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट. All right, so not many questions, but anyways, I will again suggest all of you कैंपस के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट करें और फोकस करें, क्योंकि कैंपस का जो नोटिफिकेशन है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है. जैसे लाइक डेलॉइट लास्ट ईयर समवेयर अराउंड 17 अगस्त के आसपास उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो जब कंपनीज आती हैं तो केवल और केवल एक हफ्ते पहले उसका इंटीमेशन आता है, एक हफ्ते पहले या मे बी 10 डेज बिफोर. तो वो जो 7 से 10 दिन है वो बहुत कम पड़ते हैं तैयारी के लिए. तो आपको पता है कि पिछले इतने सालों से डेलॉइट अगस्त में ही पार्टिसिपेट करती है. तो इस साल भी इसके चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो इस साल भी अगस्त में ही पार्टिसिपेट करेगी. ठीक है. आरसीसीएम हर बार सितंबर अक्टूबर में पार्टिसिपेट करती है, तो अगेन उसकी पॉसिबिलिटी भी यही है कि सितंबर अक्टूबर में पार्टिसिपेट करेंगे बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड. जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, राइट, दैट इज यू शुड यूज दैट information and you should strategize your preparations according to that. This is just the beginning of the knowledge that we have. We will be continuously doing some kind of sessions with the open sessions for all of you. और जैसे जैसे वो प्लान होंगे, we will be informing that in our WhatsApp group, right? So thank you very much for your active participation and wonderful questions and answer session. I wish you all the best for your upcoming internship, exams, internals, and campus. Thank you very much and see you in our upcoming sessions. Bye bye. Good night.